Students, how are you all? How is going your studies? I hope your studies also going on well and you all are we well. Stay home, stay safe. I always repeat these words, but I always care about my lovely students. See, the fourth chapter, a hard word. It is going to tell us about the pronunciation, how it will be very hard to pronounce a very hard word. एक हार्ड वर्ड कितना मुश्किल हो जाता है बोलना, और कभी कभी हम किस तरह से उसे इजी बनाने की कोशिश करते हैं. एंड हाउ वी स्पीक, वी शुड pronounce a proper way. We should speak pronunciations in a very proper way. It is very important for the English subject and language. Now see the story. This story is about a boy who is unable to say a particular word. Read on to find out the happens because of it. This is the story about a boy. ये स्टोरी जो है वो उस बच्चे के बारे में है जो कि पर्टिकुलर वर्ड, किसी हार्ड वर्ड को बोल नहीं पा रहा. अनेबल टू से पर्टिकुलर वर्ड मीन्स ही इज अनेबल टू स्पीक दैट इज पर्टिकुलर वर्ड. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट. तो देखिए क्या होता है इसकी वजह से कि वो प्रोनाउंसिएशंस उसका करेक्ट नहीं है और वो उस चीज़ को, उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा. तो क्या होता है उसके संग. सी, लेट अस स्टार्ट द सेक्शन फर्स्ट ऑफ द चैप्टर 4, अ हार्ड वर्ड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Popocate. Oh dear, what a hard word. Let me see. Popocate. I can. Poposate. I can never pronounce it. I'm sure. I wish they would not have such name in geography, said the George called, quite out of the patience. Will you please tell me how to pronounce the name of the mountain, father? This is the mountain. This first section is giving you some intro of this mountain. It is situated in Mexico. Why do you call a hard word to pronounce, George? I know much harder words than that. It is very small boy, that is George. He is trying to speak Popocatépetl. That is the word is Popocatépetl. And Popocatépetl, but he was not able to speak that word. वो नहीं बोल पा रहा. It is very hard to him. वो इसके लिए बहुत कठिन है. What a hard word. कितना कठिन वर्ड है, कितना टफ वर्ड है. Let me see Popocatépetl. मुझे देखने दो Popocatépetl. I can never pronounce it. शायद मैं ये कभी नहीं बोल पाऊंगा. I'm sure. बिल्कुल निश्चित. I wish they could not have such hard words names in geography. I hope, I wish, मैं चाहता हूँ इतने हार्ड वर्ड कभी भी ज्योग्राफी में ना हो. बिकॉज इन ज्योग्राफी वी रीड अबाउट द माउंटेन्स, रिवर, फील्ड्स, एनी अदर टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. सो दैट वो चाहता है ऐसे हार्ड वर्ड ज्योग्राफी में ना हो. सेड जॉर्ज गॉल. दिस द नेम ऑफ द लिटिल किड. क्वाइट आउट ऑफ द पेशेंस. अपने पेशेंस को वो बिल्कुल खो चुका था. विल यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस माउंटेन, फादर? He asked to his father. वो अपने डैडी से पूछता है, क्या प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि मैं इस माउंटेन नेम को कैसे प्रोनाउंस करूं? Why do you call that a hard word to pronounce, George? The father replied. फादर कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो जॉर्ज कि ये हार्ड है? I know much harder words than that. मुझे इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं जो मैं जानता हूँ. मुझे पता है इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं. Well, father, this is the hardest word I ever saw, replied George. I wish they had put the name into the volcano and burnt it up. Well, father, okay, father, this is the hardest word when I came to know I ever saw. जब अब तक जितने मैंने शब्द देखे हैं या सुने हैं या मेरे टच में जितने भी वर्ड्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ यही है. Replied George. George ने कहा, I wish they had put the name into the volcano and burnt it up. I wish they had put the name into the volcano. George कहता है, I wish, मैं चाहता हूँ, they had put the name into the volcano and burnt it up. मैं चाहता हूँ कि वो they had put the name into the volcano, कि वो इसका नाम एक volcano ज्वालामुखी
जिसमें से हॉट मटेरियल निकलता रहता है, लाइक द सॉइल, any many other types of black soils, any other type of things, material that is come out regularly. It is active volcano. ये बहुत एक्टिव वॉल्केनो है, जिसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा वर्क में रहता है, इसमें से ज्वाला निकलता रहता है. तो ये है स्टार्ट वॉल्केनो. एंड पोपोसेटपेटल इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो विच इज़ सिचुएटेड इन द मैक्सिको. ये मैक्सिको में है, ये एक्टिव वॉल्केनो है. एंड वो कहता है, आई होप, मैं जानता था कि मैं चाहता हूँ कि वो इन्होंने इसको एक एक्टिव वॉल्केनो के नाम पे रखा है, जो कि बर्न्ट इट अप, जो कि जलता रहता है, मतलब जिसमें से आग निकलती रहती है. आई नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सेड जैन. आई नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सेड जैन. जैन कहते हैं मैं जानता हूँ, जैने कहते हैं मैं जानता हूँ इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं. इट इज़ पोपोसेटपेटल. इट इज़ पोपोसेटपेटल, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने रिपीट किया, पोपोसेटपेटल. इसे कैटा नहीं कहेंगे, इट इज सेटा. पोपोसेटपेटल, पोपोसेटपेटल. Stopping at each syllable. He is giving the stress on the each syllable. When you want to speak properly, you have to read the phonetics. Phonetics give us a complete correct pronunciations. So that see. Well, it is not so very hard after all. Well, it is not so very hard after all, but I wish they would not have any long words that then one could pronounce them easily enough. So, ठीक है, it is not very hard. ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना टफ नहीं है. आफ्टर ऑल, आखिरकार, but I wish they would not have any long. But मैं चाहता हूँ अब इतना लंबा कोई वर्ड ना हो. Then one could pronounce them easily enough. ताकि कोई भी, I wish they would not have any long words. मैं सोचता हूँ या मैं चाहता हूँ they would not have any long words, कि अब इतने ज़्यादा लंबे वर्ड्स नहीं होंगे. And then one could pronounce them easily, और ताकि कोई भी उन्हें आसानी से बोल सकता है. I don't think so, said his father. But उनके फादर. Jan and George is two kids. Jan और जॉर्ज दो बच्चे हैं. जॉर्ज से जो है वर्ड बोला नहीं जा रहा, और जैन जो है उसने वो वर्ड बोल दिया है इजीली, और वो एक्सेप्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है. उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब कोई इतना लंबा वर्ड ना आए जिसे कोई बोल ना पाए. वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि एवरीवन कैन स्पीक इजीली, कि हर कोई व्यक्ति उसे बोल सके. आई डोंट थिंक सो, उसके फादर ने कहा. आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता. सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्ड्स आई हैव एवर सीन आर द शॉर्टेस्ट. कुछ कठिन वर्ड्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि सबसे छोटे होते हैं. हिज फादर सेड, उनके फादर कहते हैं, सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स इतने हार्ड होते हैं. हार्डेस्ट, हार्डेस्ट यानी सबसे कठिन. कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं. आई हैव एवर सीन आर द शॉर्टेस्ट, जो कि टफ इन प्रोनाउंस बट दे आर शॉर्टेस्ट, लेकिन वो सबसे छोटे होते हैं. आई नो वन लिटिल वर्ड, उनके बाद उसमें मैं एक छोटा सा वर्ड जानता हूँ. विद ओनली 2 letters इन इट, जिसमें केवल 2 लेटर हैं, 2 syllable हैं. देयर आर ओनली 2 letters दैट वेरी फ्यू चिल्ड्रन और मैन कैन ऑलवेज स्पीक. और दैट वेरी फ्यू चिल्ड्रन और मैन कैन ऑलवेज स्पीक, और जिसमें से बहुत ही कम बच्चे और मैन और लोग ऐसे होते हैं जिसे वो करेक्ट बोलते हैं. ओ आई सपोज इट इज़ ए फ्रेंच और जर्मन वर्ड, इजंट इट फादर. ओ आई सपोज, मैं सोचता हूँ कि शायद या तो जर्मन या फ्रेंच वर्ड होगा, बिकॉज फ्रेंच और जर्मन आर टिपिकल देन द अदर लैंग्वेजेस. सो दैट आई सपोज इट इज़ ए फ्रेंच और जर्मन वर्ड, इजंट इट फादर. क्या ये सही नहीं है? नो, इट इज़ इंग्लिश एंड यू मे थिंक इट इज़ फ्रेंच, बट इट इज़ जस्ट एज हार्ड टू प्रोनाउंस इन वन लैंग्वेज एज अनदर. सो नो, इट इज़ इंग्लिश. नहीं, यह इंग्लिश का वर्ड है. एंड यू मे थिंक इट्स स्ट्रेंज, और तुम सोचती हो कि तुम्हारे लिए स्ट्रेंज होगा, कोई न्यू वर्ड होगा. नो नो नो, बट इट इज़ जस्ट एज हार्ड टू प्रोनाउंस इन वन लैंग्वेज. लेकिन ये इतना हार्ड है, इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करना इतना हार्ड है एज अनदर, जितना दूसरा नहीं. ओनली 2 letter, व्हाट कैन इट बी? बच्चे, चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड, बच्चे बड़े सरप्राइज हैं. एंड दे जस्ट वांट टू नो विच वर्ड इज दिस. वे जानना चाहते कि ये वर्ड कौन सा है. एंड व्हाट इट कैन बी, what can it be, और ये कौन सा हो सकता है. cried both the children, दोनों बच्चे. what's the name of the children? that is the George and Jenny. and his father were discussing about the words which is hard, which is tough and easiest
and which is hard in pronounce, so that the both children are very crazy to know the word. दोनों बच्चे बड़े क्रेजी हैं उस वर्ड को जानने के लिए. द हार्डेस्ट वर्ड, सबसे कठिन शब्द. रिप्लाइड देयर फादर, आई हैव एवर मेट इन एनी लैंग्वेज एंड आई हैव लर्नड सेवरल. आई हैव एवर मेट विद एनी लैंग्वेज, और जब मैं किसी भी आई हैव एवर मेट, जब भी मैं किसी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ और जब मुझे उसमें से कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड मिलता है, आई हैव एवर मेट इन एनी लैंग्वेज, जब भी मैं किसी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ और उसमें कोई टिपिकल शब्द मिलता है, एंड आई हैव एवर लर्न सेवरल, और तो मैं उसे कई बार सीखता हूँ. इट इज़ ए लिटिल वर्ड ऑफ 2 letters, दैट इज़ NO, नो. और वो सिंगल 2 syllable लेटर वर्ड है, 2 letter वर्ड लिटिल वर्ड है. आई हैव लर्न सेवरल, जिसे मैंने कई बार सीखा है. इट इज़ अ लिटिल वर्ड, वो छोटा सा शब्द है, ऑफ 2 letters, 2 अक्षर से बना हुआ, दैट इज़ NO, नो. नाउ यू आर मेकिंग फन ऑफ अस. ओ, तो आप हमसे मजाक कर रहे हो. क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं. यू आर जस्ट जोकिंग विद अस डैडी, क्या आप हम लोगों के संग मजाक कर रहे हैं. दैट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट वर्ड्स इन द वर्ल्ड. दैट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट वर्ड. ये वर्ड्स नहीं होगा बेटा, यहाँ वर्ड्स का एस हटा दीजिए, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ, इट इज़ यूजिंग फॉर द वन ऑफ, तो यहाँ एस हटा दीजिए. दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द ईजी वर्ड, दैट इज़ द ईजीएस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. ये सबसे सिंपल और सबसे आसान शब्द है दुनिया का. एंड to pronounce and to prove that the father was mistaken. They just want to prove, father, you are wrong. It is easiest word in the world. It is easiest word in the world. आप words का s हटा दीजिए. That is only word. Now they just want to prove their father is on mistake. वो चाहते थे, they just want to prove दैट फादर वॉज ऑन मिस्टेक, कि उनके फादर गलती पर हैं. ये तो सबसे आसान शब्द है, हम भी ये सोचते हैं नो सबसे ज़्यादा आसान है, बट ये नो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस. सी देखिए सही प्रोनाउंसिएशंस क्या है. दे बोथ रिपीटेड एनो नो, एनो नो, वो दोनों रिपीट करते हैं एनो नो और ग्रेट मैनी टाइम्स, कई बार. आई एम नॉट जोकिंग इन द लीस्ट, आई एम नॉट जोकिंग विद यू एट लीस्ट, आखिरकार मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा. आई रियली थिंक इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स. मैं सच में सोचता हूँ कि वाकई में सबसे हार्ड वर्ड है पूरी वर्ड्स में. इट मे सीम ईजी इनफ टू यू टुनाइट, बट यू मे नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट टुमारो. तुम्हें आज ये सब देखना आसान लगेगा. इट मे सीम्स ईजी इनफ टू यू, आज तुम्हें ये सब देखकर हो सकता है आसान लगता हो, बट यू मे नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट टुमारो. हो सकता है तुम आज ही इसे बोलो, लेकिन कल तुम्हारे लिए ये बोलना आसान नहीं होगा. आई कैन ऑलवेज से इट, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ आई नो आई कैन, लेकिन मैं हमेशा से आई कैन ऑलवेज से इट, आई नो आई कैन, सेड जॉर्ज विद मच कॉन्फिडेंस. नो, जॉर्ज जो है ही सेड विद मच कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट होकर कॉन्फिडेंशली वो कहते हैं आई कैन ऑलवेज से इट, मैं हमेशा से ये कहता हूँ आई नो आई कैन, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ. ही इज़ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन अबाउट किड्स. एंड ही रिपीटेड एनो नो. वाई इट इज़ एन ईजी टू से एज टू बी ब्रीथ. वाई, क्यों. इट इज़ एज ईजी टू से, इट इज़ एज ईजी टू से इट एज टू ब्रीथ. ये इतना आसान है बोलना जितना कि ब्रीथ यानी कि सांस लेना. वेल जॉर्ज, आई होप यू विल ऑलवेज फाइंड इज एज इजी टू प्रोनाउंस एज यू थिंक. ओके जॉर्ज, आई होप, मैं चाहता हूँ, यू विल ऑलवेज फाइंड इट एज ईजी टू प्रोनाउंस एज यू थिंक, मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे लिए हमेशा से बोलना प्रोनाउंस करना इतना ही आसान हो जितना कि तुम सोचते हो. इट इज़ नाउ एंड दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इट व्हेन यू इनफ टू और टू सॉरी. His father says, it is now that you will be able. It is now that you will be able to speak it when you ought to. लेकिन it is now that you will be able to speak. ये ऐसा नहीं है जो कि तुम बोलना जा रहे हो. Will be able to speak when you ought to. तुम जो हमेशा से बोलते रहे हो ये वो नो नहीं है. It is when you ought to. तुम शायद रेयर ही इसे
बोल पाओगे। आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज के लिए कि जो हम एनो नो बोलते हैं दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस होता है नाउ। हम अपनी टंग को ट्विस्ट करते हैं, सो इट इज़ so that his father is saying no is the toughest word in the world. And I hope, मैं सोचता हूँ, think it is now that you will be able to speak in when you ought to. और जब तुम इसे करेक्ट बोलना सीख जाओगे तब तुम रेयर ही इसे बोला करोगे, क्योंकि ना कहना भी इतना आसान नहीं होता। किसी को नो कहना इतना आसान नहीं होता, किसी को किसी की चीज़ के लिए मना करना भी इतना आसान नहीं होता। Understand? Thank you. Have a nice day.